କିନ୍ତୁ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କର୍ଦମ ଋଷି କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଷଣ କପିଳ ମୁନି ଏବଂ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ପାଳନୀୟ ଅଟେ, ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ଦେବହୂତି ଯଦି ଆମେ ସମୟର କଥା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ବାସ୍ତବିକ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲେ। ତ ଅଜ୍ଞାନତା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶରଣାଗତ ହେବା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ମାତା ଦେବହୂତି ସେୟା କରିଥିଲେ। ସେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପୁତ୍ର, ତେବେ ବି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଇଏ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥା ପୁତ୍ର କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭାଷଣ ବିଷୟ ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛେ, ଯାହାକି ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏ କର୍ମର ସୀମା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ କର୍ମ କ'ଣ, ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା, ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ସମୟ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ କହିବ କି ମୋ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏ କର୍ମର ସୀମାକୁ ଜାଣିବା ବେଳେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଏବଂ ଅକର୍ମରେ କର୍ମକୁ ଜାଣ। କର୍ମରେ ଅକର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଅକର୍ମରେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଅକର୍ମରେ କର୍ମକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ତ କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି, କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଏବଂ ଅକର୍ମରେ କର୍ମକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ହେବା, ଏ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ତତ୍ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଅକର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କର୍ମକୁ ନ ଜାଣିଛେ, ଅକର୍ମ ଜାଣିପାରିବାନି।
ତ ଭଗବାନ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କ୍ରୋଧର କାରଣ ଠିକ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ସମାହିତ କରିନେବା, ତେବେ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥିତ ବିପରୀତରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପାଇଁ ପାପର ହିଁ କାରଣ ହେଇଯିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ୍ରୋଧ ତ ଆସିଲା, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସ୍ଥିର, ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କ୍ରୋଧର ଛିଟା ହିଁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା, ଏତେ ପରିମାଣର ଏକାଗ୍ରତା ମାତ୍ର 6 ମାସ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ, ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ନା କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ବା ଅକର୍ମରେ କର୍ମ ବା ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ। ବାକ୍ୟ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ବୁଝିବାକୁ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଇଏ କଠିନ ଅଟେ, ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ। ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିବା, ଦିନରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 24,000 ପ୍ରକାର କର୍ମ ହେଉ, ବିଷୟ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ? କେବେ ହେଇପାରୁଛି ସେମିତି? ପ୍ରତି ବିଷୟରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ସଦା ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ଯିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସେତିକି ପରିମାଣ ନିଜର କରିଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ କର୍ମ କର। କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ କିଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କର୍ମ କରିଥାଉ। ଏ ତ ଅଭ୍ୟାସ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କରୁଥିବା, ଅଭ୍ୟାସକୁ କେବେ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛେ? କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିଛେ?
आम जमी साइकेल शिखुचे गाड़ी शिखुचे कौन करुचे हम्स आसला पूरा हम्स आसवार 100 मीटर दूर ही गाड़ी को बंद कर दौचे तो हम्स भी गाड़ी बंद हो जाए हुए नहीं कि जो धीरे 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 गाड़ी साइकेल अभ्यास हो जाए से हम्स ता बाटे से रही थाए आम दृष्टि ही दौन आम अन्य सहित कथा कि मत साइकेल चल हम्स टे पड़ जाऊँ कहीं सी आम आचरण परिवर्तन हो आचरण परिवर्तन हो जो मोबाइल नाला किए मन पड़े पोस्ट ऑफिस रु पोस्ट कार्ड खंडे आनी आम चिठी लिखुले वर्तमान किए मन पड़े आ पोस्ट कार्ड मन पड़ने पकेट रे हाथ पुलिस पशि जाऊँ कहीं ये आम अभ्यास परिणत है तो आचरण को बारंबार बारंबार आम निज जीवन में आनी ताको अभ्यास परिणत कर अभ्यास को आचरण परिणत कर तो अभ्यास स्तर रु आचरण स्तर को आम उठार प्रचेषा ही करूँ विदुर मैत्र मुनि ठारू जो भगवत विषय श्रवण करुचंती से केवल श्रवण करुचंती ता नहीं मैत्र मुनि परी जने ज्ञानी निज सम्मुखरे पाई विदुर मैत्र मुनिंकर जो भगवत ज्ञान को संपूर्ण रूपे आस्वादन कर बेण तो राजा हेले से दंड अधिकारी हेले दंड प्रदान राजा दंड प्रदान करिवार अधिकारी अटे एवं समस्तंकर नियम कर्म अनुसार तो राजा हेले तेबे भी मुनि ऋषि माने तांको अभिशाप देवार कारण अभिशाप होचे क्रोधर उत्कृष्ट स्थिति क्रोध करिवा ही खराब जहाँकि मुनि ऋषि महानंकर आचरण विरुद्ध अटे जहाँ विरुद्ध आचरण ताप उत्कृष्टता है केमिति कौन से कारण तो मैत्र मुनि कहते राजा अंग जो अश्वमेध यज्ञ कर देवता मानकर आहुति देवता मैंने ग्रहण कले ना स्व स्व आहुति ग्रहण कले यज्ञ भाग को ग्रहण कले ना आज मध्य आमर पुरी रे भगवान जगन्नाथ प्रथा रही हस्तरे तुलसी जल भितर भगवान दृश्य प्रदर्शन न हेले दृश्य न देखा गला से भोग को अछूत कर तो भगवान ताको ग्रहण करि न थांते तो सेमिति ऋतिक माने बा पुरोहित माने कहउछन्ति हे राजन आपणकर पापर कारण आपणक प्रदत्त यज्ञ भाग को देवता माने ग्रहण करूना आपण पापर ये कारण तेणु आपण अपौत्रिक मध्य संतान तेणु प्रथमे आपण
କାମନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅଙ୍ଗରାଜ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମନା ବା ନିଜର ପୁତ୍ର ଆଶାରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ପୁରୋହିତମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଇତି ବ୍ୟବସିତା ବିପ୍ରାସ୍ତସ୍ୟ ପୁରୋ ଡାଂସଂ ନିରବପନ୍ ଶିପିବିଷ୍ଟାୟ ବିଷ୍ଣବେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପିତ କରାଇଲେ। ରାଜା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଫଳଦାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ଫଳଦାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପ ଇଏ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ବଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ଯଜମାନଙ୍କର କର୍ମରେ କୃତନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଯଜମାନ ଅଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଥିବା ସେହି ଅଧିଯଜ୍ଞ, ଯିଏକି ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଅଧିଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ଅଧିଯଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ଯଜ୍ଞର ବାସ୍ତବରେ ଭୋକ୍ତା, ଯିଏ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେହି ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା, ଅଧିଯଜ୍ଞ, ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆହୁତି। ତସ୍ମାତ୍ ପୁରୁଷ ଉତସ୍ତୌ ହେମମାଲ୍ୟ ମଳାମ୍ବର ହିରଣ୍ମୟେନ ପାତ୍ରେଣ ସିଦ୍ଧମ ଆଦାୟ ପାୟସମ୍। ତ ଆହୁତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ଭିତରୁ, ହୋମକୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଦେବ ପୁରୁଷ, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହିରଣ୍ମୟ ପାତ୍ରରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚରୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାୟସ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ତ ପାୟସ ବୋଲେ କ୍ଷୀରି ବା ଆଜିକାଲିର କ୍ଷୀରିକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛେ, ସବୁ ତ ପାୟସ। ଯାହା ପାୟସ ସେଥିରେ ଯେତେ କେମିକାଲ ପକା ସେ ବି ପାୟସ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପାୟସ ଯାହା ପୟ ରସ, ଯାହାକି କେବଳ କ୍ଷୀରର ରସରୁ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା କ୍ଷୀର ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଚାଉଳ ରସ ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ପାୟସ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେ କେମିକାଲ ପକେଇ ବି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାୟସ କହିବା, କହିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ
शरीर ठारो आत्मा बा अध्यात्म होचे आत्मार गुण एवं आ गुण को बुझिबा होचे अध्यात्म किंतु आत्मार लेस मात्र सेठे चिंतन ही नथिब किंतु से आध्यात्मिक कार्यक्रम होते सेमती आजकल मनुष्य वास्तवता को से बुझते नहीं आमे चाकरीटे करने बा किसी कर्म करने सारा जीवन इंग्लिश पढ़ुचे सारा जीवन इंग्लिश पढ़ुचे जहाँकि आमर संस्कृति नुहे कहीं भाषा संस्कृतिर परिचायक अटे भाषा संस्कृतिर परिचायक अटे किंतु इंग्लिश आम अभ्यास करुचे केवल किसी भौतिकता प्राप्त करने किंतु आमर संस्कृति बा देववाणी भगवान मुख निसृत प्रकृत वाणी को सहजरे बुझिबार प्रचेष्टा करिबा बा सहजरे बुझिबा पय आमे दिने भी संस्कृत को बुझिबा को चेष्टा करना आवश्यक है माने करना निजर भाषा से तो कह जाए ना मातृभाषा बोले कहीं मातृभाषा कह जाए भाषा भी मातृपरि पालन करता मातृपरि पालन करता आप चिंता करते जिते कौन प्रकार कष्ट आसला आप कौन कर इंग्रेज कहते इंग्रेज भाषा कहते ना एते हिंदी रे तो टीवी देखुं हिंदी भाषा कहते ना आपण भीतर मातृभाषा ही जागृत है निज भाषा ही जागृत है कहीं मन सहित से मातृभाषार एक संपर्क रही मनर भाव सहित भाषार संपर्क रही अपन देखते जन को आप अंकल कही डाकिबे ता प्रति कौन क्यों प्रकार स्नेह आसूची जन को जदि मामू वा कका वा दादा कही डाकिबे क्यों प्रकार स्नेह आसूची डाकिले तो किंतु स्नेहर स्तर निश्चित रूपे भिन्नता आप अनुभव कर कहीं भाषा सहित मन जोड़ी ही रही मन भीतर भाषा उत्पन्न होता है तो क्यों गले हाँ तो से भितर कौन है ना पायस कथर गले पायस वास्तव रे जहा कि यज्ञ प्रसाद बोली कहा जाता है तो से प्रसाद नहीं से यज्ञ पुरुष प्रकट हेले एवं जजमान रूपरे व कर्ता रूपरे उपविष्ट राजा अंग जी के शुभ्र वसन धारण करते ये शुभ्र वसन धारण करवा ये मध्य एक आवश्यकता अटे विष्णु पुराण रे मध्य किछि अपराध अच्छी विष्णुंकर पूजा करिवार किछि अपराध वर्णना अच्छी से भितर आपण माने देखि परिबे जे जो आम विभिन्न प्रकार रंगर पोशाक पिंधे तार भी प्रभाव रही से रंगर प्रभाव आमर मन को प्रभावित करिता है आपण माने या विज्ञान भी स्वीकार कर वर्तमान आधुनिक विज्ञान भी या स्वीकार कर आपणकर कलर दे जो रश्मि आपण शरीर भीतर को जीव जो आलोक रश्मि जीव ता आपण शरीर में प्रभाव एमती नहीं जे आप जहाँ भी पिंधे तेणु साधारणतः जो मैंने ब्रह्मचारी
जो मैंने संपूर्ण रूपे मन भगवान का निकट में स्थिर करिवार इच्छा संकल्पित अटंती से मैंने कौन करता न शुभ्रवसन धारण करता आजिकल तो आमर पूजा समय मध्य विभिन्न प्रकार चित्र विचित्र पोशाक आम धारण करुचे ता अनुचित अटे शुभ्रवसन धारण करवा द्वारा मनुष्य भितर ब्रह्मचर्य जागृत रहता है। तेणु शुभ्रवसन ये अलगा एवं बहुत बड़ा मर्यादा रही, बहुत बड़ा मर्यादा, सर्वशिखर मर्यादा रही। अब जिते समय पारे शुभ्रवसन पिंधे यह मुझे कहवा समय जड़े व्यक्ति स्थान कहले मत आम ज्योतिष कहते ये कलर पिंधले तो भल हम। ये सत्य कथा मुझे कहती कलर भी महत्व रही किंतु धड़ा ये समस्त प्रकार रंगर समाहार अटे, ये समाहार अटे, इधर सबू रंग रही। तेणु धड़ा पोशाक ये मनुष्य को ये समस्त रंगर मूल्य प्रदान कर देता है। ये मन भितर सात्विकता जागृत करिता है। तो समस्त पूजा पद्धति रे आगे कौन कराउतला ना धड़ा धोती सब दिया जाउतला। आजिकल मनुष्य पाखे धन बहुत हो गला, समाने धड़ा को न्यून मन कले एवं विभिन्न प्रकार रंग रंगीला सब पोशाक परिच्छन्न पिंधले सुंदरता देखागला, ये बाह्य सुंदरता देखागला किंतु वास्तव रे जो उद्देश्य थिला से उद्देश्यटा नष्ट हो गला, उद्देश्यटा नष्ट हो गला। आपण चिंता करंतु उद्देश्य को नष्ट करी आपण कौन पाइले किसी पाइबार नहीं। आपण कहबे मो एते जिनस बाहर कली किंतु किसी हला नहीं, तार कारण होउछि आमे वास्तविक उद्देश्य को परिपूर्ण करने। जितेबले मनुष्य बा जीव जगत सृष्टि है धीरे 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 से माने जो खाद्य खाइले से खाद्य जो खोजिले कौन पाई न पेट भितर थिवा तृष्णा को मेंटेवा पाई। तो खाद्यर प्रथम उद्देश्य थिला भोक को मेंटेवा, भोक को मेंटेवा। धीरे धीरे से भितरे जोड़ी हला जुहार इच्छा को मेंटेवा एवं आजी काली आमे जहाँ देखुचे ये केवल जुहार आस्वादन को मेंटेवा पाई ही खाद्य होता है। स्वास्थ्य भितर विभिन्न प्रकार रोग उपचेवा ये खाद्य करता है। से आजिकल गोटे डॉक्टर बाहर लेनी कौन डाइटिंग डाइटिंग डॉक्टर हम शास्त्र केवल से विषय लिखा ही रखा है। मनुष्य आजिकल मनुष्य या ना आजिकल देखिए छुआ मैंने बापा माँ कथा मानवे बाहर लोक कथा को बहुत शीघ्र ग्रहण करेंगे। सेमती आमर गोटे अभ्यास है आमर भी भूल रही आमे भी आमर संस्कृति आमर शास्त्र को आम मानुनी बाहर से कथा मानुचे। शास्त्र संस्कृति रे खाद्यर जो वर्णना अच्छे ताकू आम सात्विक खाद्य ग्रहण करने। ये सब पुराण कालिया पुराण
ये सब पछुआ ये आडभान्स लोकंर काम नुहे बा ये सब धार्मिक लोकंर काम आम त्याग कर गोटे डाएटिंग डॉक्टर अच्छा कहते कौन खाइब से डाएटिंग डॉक्टर से निजे डाएटिंग कर ठिकाना न से निजे ठीक खाद्य खाते हुए नहीं ठिकाना नहीं तेणु आमर शास्त्र सबकि वर्णना अच्छे आचार से सनातन पद्धति को धर्म बोली कह जाए ये सनातन धर्म बोली कह जाए आम सब विषय को धर्म बोली कही दौचे कि सब विषय धर्म नुहे ये धर्म मनुष्य को चाली चलन खाद्य पद्धति आचार व्यवहार संस्कृति सबकि शिखता है केवल पूजा नुहे केवल उपासना नुहे सी है उपासना पद्धति धर्मर एक अंश विशेष एक अंश आम से अंश को ही सबकि धरी वास्तव में आम धर्म को भूली जाऊँ तेणु आज सनातन धर्म उपरे आक्रमण बढ़ी चलुचे वास्तव में आमर संस्कृति आमर परंपरा आमर भाषा ये सब किछि संपर्कित है तो पोशाक आपको केवल परिधान करवा ताहा नहीं सेथि मध्यरे सब सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिकता प्राप्त करिवार मध्य वैज्ञानिक पद्धति रही तेणु धड़ा पोशाक ये आमको ब्रह्मचर्य स्थिर मन एवं अध्यात्म गुण प्रदान करता इत्यादि तेणु अंगराज कं करिचंती राजा अंग ना शुभ्र वसन परिधान करिचंती स्वर्णमाला परिधान करिचंती यज्ञरू उत्पन्न होइतिबा हस्तरे स्वर्ण पात्र रे पायस धरिथिबा यज्ञ पुरुष को से निज सम्मुख रे प्राप्त करिचंती तो यज्ञ पुरुष उत्पन्न ही कौन करिचंती स विप्रान मतो राजा गृहीत्वांजलि नौदनम अवघ्राय मुदाह युक्त प्रादात पत्न्या उदारधि जितेबले राजा अंग देखिचंती जे यज्ञ पुरुष शुभ्र वस्त्र परिधान करिचंती स्वर्ण अलंकार परिधान करिचंती स्वर्ण पात्र रे पायस धरी यज्ञ कुंडरू बाहरिचंती एवं ताहा प्रदान करुचंती राजा आनंदित ही गले एवं से कौन करिचंती ना जो संकल्पबद्ध थे ब्राह्मण मान सहित संकल्प ब्राह्मण मान सहित देवता मान सहित रहता है तो आचार्य मानकर नियम कथा अनुसार कर्म करवा देवता निमंते संभु माने मन काय मन वचन समर्पित रहिबा ये संकल्प रहता है तेणु से ब्राह्मण मानकर अनुमति नहीं से पायस को ग्रहण करिचंती एवं ग्रहण कर सारा पर ताको आघ्राण करिचंती आघ्राणम अर्धभोजनम पुरुष आघ्राण मात्र के ताहा पुरुषंकर उच्छिष्ट ही है तो राजा कौन करिचंती ताको आघ्राण करिचंती आमे देखिथिबा जो वैदिक शास्त्र पद्धति मध्य कौन कर जाए पिंड को आघ्राण कर जाए एवं ताको माँ मैंने कौन करते गर्भस्थ करता एथिपाई याको करा जाए जे हमर जो पद्धति रही वैदिक पद्धति से अनुसार माने तृतीय पुरुष
तृतीय पुरुष जमीक कहवा गले आम जेजे बापा आमे जेजे बापा को आमे हेले तृतीय पुरुष तो जेजे बापांकर जो गुण आम पाखरे विकसित रही था तो से गुण को संपूर्ण विकसित करने कौन कराए ये पिंड को आग्रहण कराए तृतीय पुरुष पिंड को तो या द्वारा कौन होता है न परिवार संस्कृति संपन्न होता है परिवार संस्कृति संपन्न होता है संस्कृति ही परिवार को बांधी रखीता है समाज को बांधी रखीता है राष्ट्र को बांधी रखीता है जमती आपणकर गुड़ मुआ को हो राशि खजा राशि लड्डू हो तो बांधी रखीता है बिना गुड़ हेब ना कि गुड़ को आम देखुने केवल राशि देखुचे आम कौन कहे गुड़ खजा कहे कि राशि खजा व राशि लड्डू कहे कि वास्तव में ये राशि की लड्डू कर जो प्रकृत शक्ति सी हूँ गुड़ जो मिठास तो आम संस्कृति होमर परिवार भितर माने स्थिर चिंताधारा स्थिर विचार एवं उत्तम वातावरण सृष्टि करें कि जो परिवार रे संस्कृति को मानवार चिंताधारा न था संस्कृति को विचार को वर्ण आश्रम अनुसार पालन करिवार इच्छा न था तो से भितर निश्चित रूपे अशांति भरी रही तिले मात्र संदेह नहीं ये शास्त्र वचन तेणु संस्कृति संपन्न ये हूँ सनातन धर्म तो राजा अंग से पायस को ग्रहण करिसंती आघ्राण करिसंती एवं पत्नी सुनीता को प्रदान करिसंती ताको गर्भस्थ करबा पई बा भोजन करबा सात तत्पुंसवनं राज्ञी प्रास्य वै प्रत्युरादधे गर्भं काल उपावृते कुमारं शुशुवे प्रजा पुत्रहीन राणी जितेबले से ही यज्ञ प्रसाद को ग्रहण करिसंती आनंद सहकारी अनिच्छा नहीं जन व्यक्ति कहले कि मु देखुची अन्याय होची किंतु मु किछि कहू नाही तेबे मु सेतरे भागीदार होची देखंतु किछि कहू नाहंती किंतु अन्याय होची से क्यों जानले अन्याय होची तर कारण किछि कहंती नहीं किंतु मानसिक स्तर रे से विषय सहित संपूर्ण रूपे जड़ित रहते शारीरिक स्तर नहीं मानसिक स्तर एवं मानसिक स्तर प्रतिक्रिया मध्य गोटे कर्म मुया को कर्मयोग कही केवल कर्म कर्म फल ही मनुष्य भोग करे ता नहीं प्रतिक्रिया मध्य गोटे कर्म प्रतिक्रिया को मध्य से भोग करता है ताको विशेष भाव भोग करता है तेणु मनुष्य कर्म कर्मफल नहीं तार ऊर्धर प्रतिक्रिया ताको मध्य शुद्ध करिबा पर्यंत अभ्यास जोग रहवा आवश्यक अभ्यास जोग रहवा आवश्यक प्रतिक्रिया भी शुद्ध है आवश्यक नल कर्म शुद्ध है नहीं तेणु प्रतिक्रिया ये मध्य मनुष्य को उत्तमता प्रदान करता है एवं राणी ताको ग्रहण कले ताहा नहीं
स्वामी कहउचंती ताको ग्रहण करिबा बा राजा कहउचंती ताको ग्रहण करिबा बा पुरोहित माने कहउचंती ताको ग्रहण करिबा बा यज्ञर मिलिछि ताको ग्रहण करिबा बाध्य सेथि निमंते नुहि आनंद सहकारे आवश्यक को उपलब्ध करी ताको ग्रहण करे। प्रत्येक विषय विभाजित अटे। भगवान कहले ना अर्जुन एमती किसी विषय नहीं जा विभाजन प्रति विषय विभाजन आपण एठी भी देखिले केवल भोजन करिबा ताहा भी विभाजन भोजन करिबा पद्धति ताहा भी विभाजन कहीं मनुष्य भितर उद्देश्य विभिन्नता रहते एवं उद्देश्य अनुसार प्रभावित होते हैं। केजन व्यक्ति देखिथिबे किछि नथिबो आनंद रे थिबो केजन व्यक्ति देखिथिबे सब किछि थिबो तेबे भी आनंद नथिबो। तर कारण हला उद्देश्य प्रतिक्रिया। तो राणी वास्तव में ताको आनंद सहकारे ग्रहण कले एवं जेहेतु आनंद सहकारे ग्रहण करिचंती प्रतिक्रिया निरस्त्र अटे कर्मफल निरस्त्र अटे तेणु ताहा फलप्रसू है एवं राणी कं कले एक पुत्र प्रसव कले पुत्र को जन्म देले। कुमार सुष्मे प्रजा सा तत्पुंसवनम पुंसवन माने ये जन्म संस्कार आमर वास्तव में मनुष्य 10टी संस्कार दे गति करि थाए बुझल मनुष्य 10टी संस्कार दे गति करते एवं जीवन आ गोटे संस्कार शेष संस्कार ताको बाकी रखी दे थाए मृत्यु समय। तो पुंसवन कर्म जेटा कि जात कर्म कहा जाए तो से जात संस्कार मनुष्य भितर करा जाए एथिपाई करा जाए तो चिंता या जे तो सी गोटे शरीर जन्म नेला भितर आत्मा अच्छे से आत्मा केते आड़े बुली आसी कौन चिंताधारा थी तो से संस्कार करा जाए। जात संस्कार न होइथिले ताहार पूर्वर नेगेटिविटी प्रभावित रहे तेणु संस्कार ये साधारण कथा अटे एवं रानीपुत्र प्राप्त कले सवाल एव पुरुषो माता महा मनुव्रता अधर्मा स्वभवं मृत्यु तेना भवत अधार्मिका। वास्तव रे माता सुनीता से अधार्मिक कथिले कारण तांकर जो पिता थिले से होचंती मृत्यु मृत्युंकर कन्या होचंती सुनीता एवं मृत्युंकर असंस्कार विधि पुत्री सुनीतांक पाखरे थिला तेणु सुनीता निजर संतान मानों को संस्कार प्रदान करि पारले नाही एवं बेण सुनीतांकर
अंशज एवं सुनीतांकर गुण शैली रे सदा सर्वदा लिप्त रहे। नराण मातुला कर्म साधारणतः मनुष्य मातृ संस्कार प्राप्त करी गुण को धारण करता है, किंतु बेण सुनीतांकर संस्कार रे असंस्कारित प्राप्त है एवं अंगंग परी जने धार्मिक संस्कृति संपन्न राजांकर पुत्र हेले मध्य बेण दुष्कर्म रे परिपूर्ण रहिले। असादाचरण असभ्य आचरण ये सुनीतांकर समर्थन प्राप्त है एवं शेष या परिणति जहा तुम्हें विदुर जापर ससरासन मृद्यम्य गृमयूर वनगोचर हंति असाधु मृगान दिनान बेनो सावित्य जना। बेड़ा आमे आर परवर्ती अध्याय रे बेड़ा विषय रे आहुरी किछि पढ़िबा। वास्तव रे जन्म समय ही मध्य छोट समय बेण झगड़ा करिबा, मृग्या बा पशु हत्या करिबा, कलह करिबा, युद्ध करिबा इत्यादि सब कर्म रे लिप्त रहिले। निर्जीव निरीह जीव मानकर हत्या करिबा तंकर गोटे खेल साजिगला। एथिरो बेणकर हृदय को आम बुझी पारुथिबा जे केउ प्रकार निष्ठुर भाव तांक भितरे जागृत हो जाइथिला। एई प्रकार जे तांकु जदि केही उत्तम गुण प्रदान करती बा किछि छोट छुआ भूल तो करवा स्वाभाविक हिता पारे। तेणु किए जदि कहे ये तो भूल ही तो सी से स्वीकार न करी ता प्रति मध्य क्रूरता प्रदर्शन करती। तेणु धीरे धीरे ए प्रकार हला जे अन्य माने बेण को देखिले भୟରେ चित्कार करवा आरंभ कले, भୟରେ से स्थान पलैवा आरंभ कले। अन्य माने भୟରେ तांको औचित्य कथा मध्य उचित कथा मध्य कहवा को साहस कले नहीं। तो बेण तांकर निजर गुण संस्कृति जोगु अपसंस्कृति जोगु सी उचित माने शिशु समय रे अन्य मानक ठारो जो उचित शिक्षा प्राप्त करिवार कथा ताको मध्य प्राप्त करि पारले नाही, जेहेतु क्रूरता निष्ठुरता एवं एक माने अपथ्य हृदय भावना को से प्राप्त करते। तेणु बेण आसवा समय लोक मैंने कौन कले भय कले। तो ये साधारणतः आसुरिक स्वभाव आम कहते ना मत समस्ते भय कर समस्ते भय करिवार ये मध्य एक खराब विषय अटे। समस्त भय करुचंती माने मोर भूल को सुधारिवार मते सुजोग ही प्रदान नहीं पाब।
तेणु सदाबले अन्य माने भय करिवार ये विभिन्नता रही। राजा रामचंद्र को भय करुଥିଲେ, ये औचित्यता था। रावण को भय करुଥିଲେ, ये औचित्य नुहे। भय करिवार मध्य प्रभेद विभेद रही। आक्रीडे कीड़ोतो बाणान वयस्या नतिदारुण प्रसह्य निरनु क्रोशः पशुमार ममारयत। बेणर हृदयटी ए प्रकार निष्ठुर हो गला, ए प्रकार निर्दय विचार शून्य अपसंस्कृति ता भितर जागृत हो गला जे तार सांग साथी माने तार समवयस्क बालक माने मध्य बेण सहित मिसिबा को पसंद कले नाही। बेण सेमानंकु पशुतुल्य व्यवहार करथिला। तो सेमाने बेण सहित क्रीड़ा करने को मध्य पसंद कले नहीं। यही प्रकार भावरे बेणर निष्ठुर निर्दय हृदय जो छोट समय तैयारी होगला, जागृत होगला, तार परिणति स्वरूप ता पाखरे आउ कहीं रहिले नाही। तंग विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनै विविधे नृपः जदा न शासितुं कल्पो भृश मासित सुदर्मना। राजा अंग निजर पुत्र को स्नेह प्रदान करिवार इच्छा प्रकट करिथिले मध्य बेणर संस्कृति बा बेणर आचरण रे से अतिष्ठ होते एवं केवल जैसे अतिष्ठ होते ताने हारी जाते ताने बेण को सुधारिबा पाई व निजर पुत्र को सुधारिबा पाई ताड़ना तर्जन विभिन्न उपाय अवलंबन करथिले। ताड़ना करिबा, गाली करिबा, या नहीं सेया करिबा नहीं कि एवं तर्जना तो बुझाई दिले मध्य या कले या हबो, या कले या हबो, किंतु अंगराज कर संस्कृति बेण ठारे संपूर्ण रूपे विपरीत हो रही थिबार हेतु अंगराजंकर ताड़न तर्जन मध्य तिले मात्र बेण उपरे प्रभाव पकाइला नहीं। एवं यही कारणरू राजा अंग अत्यंत मर्माहत हेले, अत्यंत दुखित हेले, सदा सर्वदा मनरे संताप को जागृत रहेला, संताप जागृत हो रहेला। तो दिन ए प्रकार आसिला राजा चिंता कले वास्तवरे अपुत्रिक माने ही बोध हुए उत्तम अटंती। जो पुत्र प्राप्त करबा पाई यज्ञ करिथिले सी आज चिंता करुचंती जे अपुत्र कहीं उत्तम अटंती।